اور پروگرام کا یہ سیگمنٹ انتہائی امپورٹنٹ ہے جی، کیونکہ آج ہم بات کریں گے ملک بھر میں گڈس ٹرانسپورٹ اور اس وقت جو منی مزدا ایسوسیشنز ہیں ان کی ہڑتال جاری ہے۔ یہ لوگ بھی اگر دیکھا جائے ان کی جگہ پہ ہم خود کو رکھ کر کے دیکھیں تو یہ اپنے رائٹ میں ہیں، کیونکہ یہ ایک نیا فارمولا، ایک نئی راکٹ سائنس جو حکومت کی جانب سے اور وزارت پیٹرولیم کی جانب سے یہ روزمرہ جو پیٹرولیم کی جو قیمتیں ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی، اس میں جو رد و بدل کا فارمولا یہ عوام کو بھی سمجھ نہیں آیا اور ہر طبقہ اس سے سفر کر رہا ہے۔ لیکن اس میں الٹیمیٹلی بوجھ ان کی ہڑتال کا بھی وہ عوام پہ پڑتا ہے۔ عوام کا اس میں کیا قصور ہے؟ یہ ہڑتال کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ ان کی ہڑتال کے پیچھے ان کے کیا محرکات ہیں؟ ان کے مطالبات کیا ہیں؟ اور کیا انہوں نے نیگوسیشن کرنے کی کوشش کی متعلقہ اداروں کے ساتھ، حکومت کے ساتھ؟ اور اگر واقعی کی ہے اور ان کی سنوائی نہیں ہوئی تو پھر کون اس کا ذمہ دار ہے؟ اور ہڑتال کی وجہ سے اس وقت کون سا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ سفر کر رہا ہے؟ عوام پہ اس وقت کیا بوجھ پڑا ہے؟ ظاہر ہے تمام تر جو اشیاء خرد و نوش ہیں ان کی قیمتوں پر اثر پڑتا ہے، ٹرانسپورٹیشن متاثر ہوتی ہے، کرائے جو ہیں، اور یہ ساری چیزیں یہ عوام کس طرح سے سفر کر رہی ہے، اور یہ ایندھن کی قیمتوں میں استحکام ہے، ٹیکس ہے، جرمانے ہیں، ریلیف، ٹرانسپورٹ سے متعلق مسائل، یہ ان کے مطالبات ہیں۔ کیا کہتے ہیں یہ؟ ان سے ہم جانیں گے اور ان سے یہ بھی جانیں گے کہ اس میں عوام کی کیا غلطی ہے، عوام کو جواب دہ کون ہے۔ اگر یہ ہڑتال کر کے بیٹھ جائیں گے، وہ اپنی ضد پہ اڑے رہیں گے تو عوام سفر کر رہی ہے، جواب آج جانے کی کوشش کریں گے۔ اس کے لیے معزز مہمان جو پینل پر میرے ساتھ موجود ہیں جی، صدر پاکستان گڈس ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن نبیل محمود صاحب، آپ کو ویلکم کرتے ہیں جی اپنے مارننگ شو میں ہم۔ سیکریٹری جنرل پاکستان اس وقت منی مزدا گڈ ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن ملک معروف صاحب ہمارے ساتھ ہیں، آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں، اور ہمارے نمائندے عمر دراز ہمارے ساتھ ہیں۔ عمر سے آغاز کرتے ہیں، صورتحال جانتے ہیں، دین اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ عمر، کیا مطلب یہ لوگ ہڑتال کر کے بیٹھ گئے ہیں، ادھر وہ لوگ اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، وہ روزمرہ جو رد و بدل ہے، قیمتوں کا فارمولا ہے، وہ عوام کو بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے، عوام سفر کر رہے ہیں، پریشان ہیں، الٹیمیٹلی سارے کا سارا جو ملبہ ہے، جو بوجھ ہے، وہ عوام پہ پڑ رہا ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، انہوں نے 8 دسمبر کو بھی جو ہے وہ اپنے انہی مطالبات کے حوالے سے جو ہے وہ ہڑتال کی تھی، اور اس کے بعد سینئر وزیر محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ اور صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان صاحب اور جو متعلقہ اداروں کے جو افسران تھے، انہوں نے ان کے ساتھ ریٹن معاہدہ بھی کیا تھا، اور جو ان کے مطالبات تھے ان کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ جس حد تک ممکن ہوگا ہم ان کو سالو کریں گے۔ لیکن 8 ماہ گزرنے کے باوجود کوئی 8 ماہ تک 8 دسمبر کی ہڑتال تھی، اور 8 اگست کو انہوں نے دوبارہ ہڑتال کا جو ہے وہ اعلان کیا۔ اس مینس کہ 8 ماہ تک کچھ بھی نہ ہو سکا، اور ان کے مطالبات میں سے کوئی بھی جو ہے وہ حل نہیں ہوا، بلکہ جو مزید بڑھ گئے، جن میں سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں روزانہ کی بنیاد پر رد و بدل جو ہے وہ ان کا کہنا ہے کہ اگر ایک گاڑی کراچی جاتی ہے تو وہ 4 روز میں پہنچتی ہے، تو روزانہ کی بنیاد پہ اگر ڈیزل کی قیمت بڑھے گی تو جو کاسٹ، یہ جو کرایہ انہوں نے طے کیا ہوگا، وہ تو بجائے ان کو پروفٹ آنے کے وہ 10-20 ہزار روپیہ ان کو لاس جائے گا۔ تو اگر قیمتیں کم ہو جاتی ہیں ان کو فائدہ بھی تو ہوگا نا؟ نہیں، وہ بالکل نہ ہونے کے برابر کم ہوتی ہے۔ اگر ہمارے ملک کا یہ وطیرہ جو حکومت کر رہی ہے کہ اگر بڑھاتی ہے تو روپوں میں بڑھاتی ہیں، اور جو ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے وہ پیسوں میں دیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے ان کے لیے تو پرابلم ہے۔ اور سیکنڈلی ان کا جو دیگر مطالبات ہے جس میں ود ہولڈنگ ٹیکس ہے وہ 7% لگا دیا گیا، ان کا کہنا ہے کہ 2% تھا، اس کو وہیں پہ رہنا چاہیے۔ لاہور میں بڑے ایشوز ہیں کہ جو پیرا کے فورسز کی کارروائیاں ہیں، کارپوریشن کی کارروائیاں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کو جو ہے وہ بس اڈے نہیں مل سکے ابھی تک، ٹرک اڈے نہیں مل سکے، تو یہ کافی سارے ایشوز ہیں جن کے لیے انہوں نے بار جو ہے وہ متعلقہ اداروں سے ریکویسٹ بھی کی، اور جو کمیٹی بنی وہ صرف کمیٹی بنی، ان کو جو افسران تھے ان کی جانب سے ٹائم جو ہے وہ نہیں دیا گیا، اور وہ مطالبات اسی رہے، اور پھر مجبور ہو کر انہوں نے اپنا کاروبار جو ہے، کیونکہ ان کا یہ کہنا کہ ہم اپنا کاروبار بند نہیں کرنا چاہتے، ان کے ساتھ روزگار ان لوگوں کا بھی لگا جو دیہڑی دار لوگ ہیں، اور پھر ان کی ہڑتال سے جو ٹرانسپورٹیشن میں تعطل آتا ہے تو مہنگائی کی شرح میں بھی جو ہے وہ اضافہ ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے یہ لوگ خود پریشان ہیں، اور یہ پریشانی کی حالت بھی جو ہے جو ٹرانسپورٹ برادری ہے، گڈس ٹرانسپورٹ اور منی مزدا ٹرانسپورٹ جو ہے وہ ہڑتال پہ گئی۔ ٹھیک ہے ملک معروف صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ کیا آپ کے جو مطالبات ہیں سب سے زیادہ کیا آپ کا بڑا مسئلہ ہے؟ اور پھر یہ پیٹرولیم مصنوعات ہیں، ٹیکسیز ہیں، دیگر اخراجات ہیں، ان میں اضافے جو ساری یہ صورتحال ہے، اس نے کتنا آپ کے کاروبار کو متاثر کیا ہے؟ جی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں موقع دیا اپنا اظہار کرنے کا۔ بیسیکلی یہ ہے کہ یہ جو عمر صاحب نے بات کی ہے کہ ہماری جو مصنوعات کی پرائس ہے نا، وہ جب تک کنٹرول نہیں ہوگی تو ہمارا کاروبار بالکل تباہ ہو جائے گا۔ اس میں یہ ہے کہ اگر ہم یہاں سے گاڑی لوڈ کراتے ہیں کراچی جانے کے لیے، اس کو 3 یا 4 دن چاہیے، جی،
तो 3 या 4 दिन में ये होगा कि डेली की बुनियाद पे ये डीजल प्राइस बढ़ा रहे हैं, जो हमारे लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। गाड़ी से किराया हमारा तय हो गया, पार्टी से किराया तय हो गया, उसके साथ गाड़ी से भी किराया तय हो गया, मगर जब तक कराची पहुंचेगा अगर हम उसको लाख रुपया 1.5 लाख रुपया किराया दे रहे हैं सही, तो वो खर्चे उसके कंट्रोल में नहीं आएंगे, क्योंकि डीजल प्राइस कराची तक बढ़ते बढ़ते उसके 40-50 हज़ार रुपये का फ़र्क पड़ जाएगा। तो इसलिए हमारे काम में डीजल की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा ये है कि ये तो अभी हुआ है ना? हाँ, ये अभी हुआ है। अभी उमर बता रहे थे आप तो 8 महीने से 8 महीने, हाँ 8 महीने, हाँ, 8 महीने स्ट्राइक में नहीं है। हाँ। 8 दिसंबर को 2025 को हमने स्ट्राइक की थी। अच्छा। फिर चीफ मिनिस्टर साहब के कहने पर सीनियर मिनिस्टर मर्जी औरंगजेब साहब ने हमारे साथ 2 सेशन किए, काफ़ी हद तक हमारे उनके आपस में मतलब बैठ के डिस्कस हो गई, मुतालबात कुछ उन्होंने हमारे मान भी लिए, हमने स्ट्राइक ख़त्म कर दी, मगर वो चंद दिन चले हैं। अच्छा। उसमें हमारे जो इशू आ रहे थे, RTS सेक्रेटरी का चलान बहुत ज़्यादा कर रहे थे, 15-15, 20-20 हज़ार रुपये गाड़ी का कर रहे थे, वो चंद दिन के लिए इन्होंने रेशो कम की। अच्छा। उसके बाद दोबारा वही शुरू हो गया, मतलब है हमारी गाड़ियों को मतलब है बेजा ये 279 पे बंद कर रहे थे, FIR दे रहे थे ड्राइवरों के ऊपर, वो पहले इन्होंने बंद की, उसके बाद 2-3 माह के बाद दोबारा शुरू कर दी। अच्छा। उसके अलावा सबसे जो मेजर इशू आ रहा है, अभी देखें टोल प्लाजे हर 2-3 महीने के बाद ये बढ़ा देते हैं। हाँ, टोल टैक्स बढ़ता है, टोल टैक्स बढ़ता है, उसका कोई ये हाल ही नहीं निकाल रहे। जब भी हम मतलब इनसे बात करते हैं आजकल कर रहे हैं, और वो जो 100 वाला था वो 1000 पे चला गया टोल प्लाजा, मतलब है तो कराची तक उसका आने जाने में खर्चा कम से कम 10-15 हज़ार पे चला गया। अच्छा। वो जो मैनेज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिन पार्टियों के साथ हमारे एग्रीमेंट होते हैं उनमें एनुअल के एग्रीमेंट होते हैं, और ये चीज़ें शामिल नहीं होती, टोल प्लाजा उसमें शामिल नहीं होता, और चीज़ें शामिल नहीं होती। इसके अलावा ये है कि हमारा सबसे जो मेन इशू चल रहा है इनके साथ वो ये है कि इन्होंने हमारे साथ जितने भी 8 दिसंबर वाले मामला किए थे, हमारा इनका एक एग्रीमेंट तय हो गया था, वो 1% भी हमें उसमें रिलीफ नहीं मिला। इसलिए हमें दोबारा एग्रीमेंट में क्या आपके मेन मुतालिबात क्या? मेन मुतालबात ये थे कि हमारी इन्होंने कुछ एक्शन गाड़ियाँ जो हमारे पास मतलब उनकी बुकें मौजूद हैं, अच्छा 7500 गाड़ी है, वो अभी तक इन्होंने हमें मतलब उसमें बंद कर दी हैं, ड्राइवर ने अपने घरों में खड़ी कर दी हैं, इन्होंने गाड़ियाँ कैंसिल कर दी थी महकमा एक्साइज ने। इनके साथ हम बैठे, महकमा एक्साइज के बैठे, क्योंकि भाई हमने खुद तो ये कापियाँ नहीं बनाई हुई, आपने हमें फ़ाइल बना के दी, कापी बना के दी, हमने मार्केट से एक्शन पे गाड़ी ले ली, तो हमने रोड पे चलाना शुरू कर दी। 10-12 साल वो गाड़ी चलती रही। मैंने गाड़ी खरीदी, मेरे से आगे खरीदी, कि 10-10 लोगों के पास चली गई। 10 साल तो इन लोगों को होश नहीं आया। हाँ। 10 साल के बाद जब नई कोई मैनेजमेंट की आई तो उन्होंने बोला कि ये तो गाड़ियाँ एक्शन की, मतलब कितना करप्शन का। हाँ। ये देखें ना, एक नया कट्टा खुल गया है। हाँ। ये एक नया एक करप्शन का एक तरीका है, एक माफिया है ये भी पूरा। और ये आप कितनी गाड़ियाँ बता रहे हैं? ये हमारी गाड़ियाँ तो 10-12 हज़ार थी। 10-12 हज़ार। हाँ, अभी जो 7500 गाड़ी है वो इन्होंने मतलब कैंसिल कर दी है। 7500 कैंसिल कर दी है। उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल। हाँ, और देखिए डॉक्यूमेंटेशन करने वाले, बनाने वाले, ये मुतल्लिका जो इदारे हैं वो सोए पड़े थे जब वो कह रहे हैं कि वो चल रही थी गाड़ियाँ, और आप 2-3 साल चलती उसका टैक्स लेते रहे हमसे रूट परमिट की शक्ल में, मतलब है। चले इसी यहीं से कंटिन्यू करते हैं। मलिक मारूफ साहब को भी हम शामिल गुफ्तगू करते हैं, नबील महमूद साहब को भी। नबील महमूद साहब, क्या मतलब आप नहीं समझते हैं कि ठीक है आप लोग के जायज़ मुतालिबात है, अभी जो मलिक साहब बता रहे थे, लेकिन कोई ऐसा कोई हल निकलना चाहिए, कोई बीच का रास्ता कि अवाम, ये मुल्क तो हमारा है ना, ये ठीक है, हमने इन्हीं वसाइल में रहना है, इन्हीं वसाइल के अंदर रहते हुए कोई ना कोई स्ट्रेटजी, कोई ना कोई ऐसा रास्ता कि अवाम भी सफ़र ना करे और काम भी चलता रहे। क्यों मतलब हड़ताल दुरुस्त है, ठीक है ये? शुक्रिया जी। असल में लम्हा फ़िक्रिया है पूरे हमारे लिए भी, गवर्नमेंट के लिए भी, इदारों के लिए भी, कि ये आज जो पूरा पाकिस्तान का पहिया रुक गया है उसके महर्रकात क्या हैं, उसके पीछे क्या मसला है कि आज 8 माह के बाद दोबारा इस मुल्क को नुकसान, हमें भी नुकसान हो रहा है, गवर्नमेंट को भी नुकसान हो रहा है, इंडस्ट्री को भी नुकसान हो रहा है, ताजिर को भी नुकसान हो रहा है, आम शहरी को भी नुकसान हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि जो मायदे किए जाते हैं, जो स्ट्राइक हुई है, उसका मकसद ये होता है कि जी जब अदारे नहीं सुनते फिर आप स्ट्राइक पे जाते हैं, फिर टेबल पे बैठते हैं, क्योंकि हर मसले का हल टेबल पे ही होता है।
जंगें भी देखिए हो रही हैं तो टेबल पे ही मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो जब आप उस माहदे को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, उसको तोड़ देंगे, तो फिर आपके दरमियान गवर्नमेंट के अदारों के और हमारे दरमियान में जो एतमाद का एक रिश्ता है वो ख़त्म हो जाएगा। तो हम जब बैठते हैं उस वक्त सारी बातें मानी जाती हैं, उस पर इम्प्लीमेंट जी कमेटियाँ बन जाती हैं, उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है कि 1 माह के बाद जी कमेटी बैठेगी जी, आपके मसले हल करेगी जी, आपकी बात सुनी जाएगी, उसके बाद उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि हमें कोई 10 मिनट मीटिंग के लिए दे दिया जाए, हमारी मुश्किलात सुनी जाएं। देखिए एसोसिएशन का काम और गवर्नमेंट के अदारे जो होते हैं वो आम बिजनेसमैन और उनके दरमियान में ब्रिज का किरदार अदा कर रहे होते हैं। हम अपनी मुश्किलात लेके जब इनके सामने जाते हैं, इनको उस मसले का कुछ पास ही नहीं होता कि जी वक्त गुजर गया है, चलें जी लॉलीपॉप दे दिया है, अब ये जाएं और जाके आराम से बैठ जाएं। वो फिर करते करते इस वक्त हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि हमारा यानी कि गवर्नमेंट के दरमियान और बिजनेसमैन के दरमियान बहुत फासले बढ़ते जा रहे हैं बदएतमादी के। दूसरा जो हरासमेंट की जा रही है, जैसे पीरा फोर्स है, इतना आके तो लोगों के ऊपर जुर्म ज्यादती हो रही है। शहर के अंदर आपको पता कंजेस्टेड है बहुत ज़्यादा। हमें आज तक ट्रक अड्डे की जगह नहीं दी गई, हम शहर के अंदर बैठे हैं। हम कह रहे हैं बस अड्डों के हाल देख रहे हैं, वहाँ पे तो कोई फैमिली लेके जाना कोई सोच भी नहीं सकता। अब जाए बस अड्डे पे आप ट्रक जी ऐसे ही है जी। तो अब देखो ना, ये गवर्नमेंट का फर्ज बनता है कि आप इतनी डेवलपमेंट जो कर रहे हैं तो कम से कम हमें कोई ऐसी ऑर्गेनाइज जगह दे दी जाए जिस बाउंड्री के अंदर हम आराम से इज्जत से काम कर सके। शहर के अंदर हमारे लिए बहुत मुश्किलात है। कॉर्पोरेशन है वो सामान उठा के ले जाएंगे, वार्डन है वो चलान करेंगे, हाईवे वाले हैं वो चलान, हर किसी को आपने बजाय कि हम सिस्टम को बेहतर करें। देखिए दुनिया में सिस्टम बनते हैं 10-10 साल उस सिस्टम को इम्प्लीमेंट पे लग जाते हैं। हम कहते हैं रात को सिस्टम आया सुबह इम्प्लीमेंट हो जाए, स्टेक होल्डर को बताया जी बिल्कुल काटो, तख्ती लगाओ, तख्ती लगी होनी चाहिए कि ये जी फलां का मंसूबा है, ये फलां का मंसूबा। जब तक हम इन चीज़ों से नहीं निकलेंगे ना, नहीं है चल रहा है, नहीं इनसे हमारी हुकूमतों को कोई कंसर्न नहीं है। उमर दराज साहब आप क्या कहेंगे? ये पीरा फोर्स का तो मैं जो कोई भी आता है पीरा फोर्स के इधर वो गुन गा रहा होता है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। और इस हुकूमत का तो नारा है इंफ्रास्ट्रक्चर। ये हुकूमत इंफ्रास्ट्रक्चर को के बेहतर बनाने की वजह से इनका मेन स्लोगन ये है ना। तो क्या कर रहे हैं ये लोग? कोई मंसूबा नहीं। मुतल्लिका इदारे क्या कहते हैं? हुकूमत का क्या इस पे मौक़िफ़ है? देखिए हुकूमत की जानिब से तो यही है कि जो पीरा फोर्स क्यों नहीं उसको कोई लगाम डालने वाला? पीरा फोर्स के लिए रेडियाँ उठा के ले जाते हैं, जिसको दिल करता है वो उलट जाते हैं रेडियाँ, फ्रूट उठा के ले जाते हैं, पैसे भी उनसे ले जाते हैं। ये भी कहते हैं पीरा फोर्स से तंग आए हुए हैं। क्या कर रहे हैं ये लोग? बेसिकली तौर पे जो पीरा फोर्स का काम है वो नाजायज़ तजावुज़ात जो हैं उसको ख़त्म करना है। अब इनको एक बाउंड्री लाइन दे दी गई है, एक येलो लाइन बना दी गई है जिसके अंडर जो है ये अपना काम कर सकती हैं। अब इनके मुताबिक कि वो पीरा फोर्स वाले आते हैं, वो येलो लाइन के जो पीछे भी सामान पड़ा होता है उसको भी उठा के ले जाते हैं। इनका ये कहना है कि कारपोरेशन वाले आते हैं वो भी सामान उठा के ले जाते हैं और उसके बाद वापस भी नहीं करते। और क्योंकि ये सामान इनका अपना नहीं होता, इनके पास ज़ाहिर है डिलीवरी के लिए आता है, बुकिंग आती है किसी दूसरे शहरों के लिए। इनका बेसिकली तौर पे काम जो है वो दीगर शहरों को चीज़ें प्रोवाइड करना है। जो होलसेल मार्केट्स हैं, जो भी गुड्स आती हैं, इन्होंने एक अमानत को दूसरी घर पहुंचाना होता है। तो जब वो उठा के ले जाते हैं तो इनके लिए तो इशू बनता है। बुनियादी वजह यही है कि वो वहाँ पे उनके पास जो है वो रख लेते हैं और इनके लिए मुश्किलात का बायस बनती है। और ये बात इनकी बिल्कुल जायज़ है कि जो आपने बाउंड्री लाइन दे दिया उसके बाद जो है वो आप उसको तो उसकी तो छूट दे, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं जिसकी वजह से गुड्स ट्रांसपोर्टर खासे परेशान हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये टैक्सेस और रूट्स परमिट्स हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं, इसके अलावा और कोई क्या मुतालिबात हैं आपके? देखिए जी, हमारे मुतालबात जो कह लें कि इस वक्त जो कराची से पेशावर तक सब बंद है, उसमें हमारे कुछ वफाक के इशू हैं जो जैसे डीजल प्राइस है। डीजल प्राइस का जैसे उमर साहब ने बताया कि ये इसके ऊपर कभी मुमकिन ही नहीं है कि हम डेली बेसिस के ऊपर प्राइसेस के ऊपर नीचे जाने से, क्योंकि हम अभी उन कंट्रीज़ में नहीं है कि जितनी मजबूत हमारी माशियत है कि हम लोग उस तरह के फार्मूले पे चलें, उससे हमें नुकसान हो रहा है। उसके बाद हमारा जो टोल टैक्स में इजाफा है, एक कस्टम एक्ट है SRO 1619। अब ये एक ऐसा कानून बनाया गया है कि अगर एक 40 फुट का कंटेनर है, कानून बना हुआ है, ये अंग्रेजों के दौर का जो कस्टम एक्ट चलता आ रहा है। अच्छा। अब उस वक्त होते थे बेडफोर्ड ट्रक होते थे, अंग्रेज के दौर का ही सब कुछ चल रहा है। रेलवे भी अंग्रेज के दौर की चल रही है, ठीक है। वो सारी नहरी निज़ाम भी अंग्रेज के दौर का बनाया हुआ चल रहा है। हमारे इंजीनियर तो सड़कें बना देते हैं तो वो अगले दिन वो सारा उखड़ा हुआ होता है। रोडें आप देख लें
क्या हालात है, बारिश थोड़ी सी हो जाए, गलियों मोहल्लों की सड़कों की जो सूरत हाल है, तो उसमें ये है कि प्राइम मूवर, फिर भी हम अंग्रेज को बुरा कहते हैं जी, प्राइम मूवर अलग है, उसके ऊपर कंटेनर है, वो पाकिस्तान की प्रॉपर्टी नहीं है, वो बाहर की शिपिंग लाइन है जिनके कंटेनर है, उसके अंदर 100 बिल्टी का सामान है। अब कानून ये कहता है कि उसमें अगर एक नग भी नॉन कस्टम या कोई उसकी ड्यूटी में फ़र्क होगा तो वो गाड़ी जब्त होगी। अब 2.5-3 करोड़ रुपए की गाड़ी है हमारी, उसका कसूर क्या है? अगर आपने सामान में कोई मसला है, आप उसको रोकें, डिटेन करें, उसके डॉक्यूमेंट चेक करें, हमारी इनवाइस होती है, हमारी बिल्टी होती है, लेकिन उसके बावजूद हमारी गाड़ी को जब्त कर लिया जाता है। यानी कि आप देखें कि हम कुछ उसको वापसी के लिए भी तकाजा नहीं कर सकते, ऐसा कानून बनाया गया है। तो देखें ना, जुल्म ने तो वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बन जाएगी जी, वो गवर्नमेंट उसको नीलाम करेगी। कहाँ जाती हैं वो गाड़ियाँ? वो ज़्यादा जो डिपार्टमेंट उस पर कार्रवाई करता है वो उसको जब्त कर लेता है, लेकिन कौन सा डिपार्टमेंट? ये कस्टम जी, कस्टम उसको जो है वो अपने पास रख लेता है और तो वो वापस नहीं करता मतलब फारिग। जी, हम कोर्ट से भी नहीं रिलीफ ले सकते, ये कानून बनाया गया जी। तो आप बताएंगे हमें सरापा एहतजाज ना हो तो क्या हो? इस तरह टोल टैक्स में हर 3 माह के बाद इजाफा, उसमें आप भी इफेक्ट हो रही हैं, हम लोग भी हो रहे हैं, हर बंदा हो रहा है। अभी 1 साल के बाद रख लेना। एक कॉमन मैन है जो पाकिस्तान का सबसे ज्यादा वो सफर कर रहा है, ठीक है, जिनके घर का चूल्हा, जिनकी दाल रोटी, जिनका दारो मदार, वो सब। आप लोग भी ठीक हैं, हड़ताल करके बैठे हुए हैं, वो भी सही हैं, उनके अपने फार्मूले हैं। अच्छा मलिक साहब, अगर हुकूमत आज कहती है कि आ जाओ टेबल टॉक करते हैं, तो क्या हड़ताल ख़त्म कर देंगे आपके, या कोई ऐसे मुज़ाकरात हैं कि आप कहते हैं जब तक ये पॉइंट्स हमारे नहीं एडमिट किए जाते, मुतालिबात नहीं मानते, नहीं करनी ख़त्म? देखिए जी, 8 दिसंबर की स्ट्राइक के बाद हमारा तो यही अभी मुतालबा है कि जब तक वो हमें कोई ऐसा हमारे साथ एग्रीमेंट नहीं करेंगे, हम स्ट्राइक से पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि पहले भी इन्होंने लॉलीपॉप दिया हमें, इससे पहले भी जब हमने हड़तालें की इसी तरह होता रहा कि आप मतलब हड़ताल ख़त्म कर दें तो 1-2 कमेटी बना देते हैं 2-4 मिनिस्टरों की, तो वो हमें 10 दिन 20 दिन मतलब आगे पीछे चलाते रहते हैं, उसके बाद उसका हल को नहीं निकलता। तो अभी जो माशियत सारी तबाह हो चुकी है और ट्रांसपोर्ट उसका सबसे अहम हिस्सा है। अगर ट्रांसपोर्ट बंद हो जाएगी तो पूरा मुल्क बंद हो जाएगा। आप देखें ना, अभी आपकी सब्जियां फ्रूट मंडियों में नहीं आ रहे और जो मतलब रोज़मर्रा की अशिया हैं वो नहीं मिलेंगी लोगों को, स्टोरों पे माल नहीं जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी, तो सारी मतलब आवाम को तकलीफ़ है। तो हम इनको बार बार यही कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा एग्रीमेंट करें, हमारे जो जायज़ मुतालबात हैं हमको नजायज़ नहीं कर रहे आपके साथ, जो समझते हैं नजायज़ है उसके ऊपर हम जहाँ पे वायलेशन कर रहे हैं हमारे लोग, वो हम एग्री हैं इनके लिए तावन करने के लिए। मगर ये तो नहीं कि हर वो मतलब वो डंडे वाले काम हमारे साथ कर रहे हैं। सही। हाँ, तो इसमें हमारे देखो, एक मुल्क में आंधा कानून है, ऑयल टैंकर के लिए 2% होल्डन टैक्स है, तो जो हम ट्रांसपोर्टर हैं वो ट्रांसपोर्ट वाले उनके लिए 7% कर दिए। 7%। हाँ। पहले हमारा एक ही था दोनों का। अच्छा। ऑयल टैंकर का और हमारा मतलब ट्रांसपोर्टरों का एक ही था। अच्छा। तो अभी हमारा 7% पे ले गए हैं, उनका 2% ही चल रहा है। 2 और 7 की क्या रेशो है उमर? ये मतलब मुतल्लिका इदारे इस बारे में क्या कहते हैं कि ये क्यों इतना ज़्यादा डिफरेंस रखा हुआ है? ये पॉलिसी है जी उनकी, जो लॉ बनाएंगे, जो टैक्स की रेशो ये रखना चाहेंगे, गवर्नमेंट तो आल है ना, बाख्तियार है, वो जो मर्जी लगा सकती है। तो इनका ये बिल्कुल जायज़ मुतालबा है कि 2% अगर लिया जा रहा है तो वो 2% लिया जाए। ये तफरीक क्यों? या इतना ज़्यादा डिफरेंस तो ना रखे ना कि 2 और 7 की रेशो, वो समझ में नहीं आ रही है। खैर, ये तो अब मुतल्लिका इदारे जो हैं या मुतल्लिका डिपार्टमेंट इस पर जवाब दे सकता है, इसकी क्या रीज़न हो सकती है। मुज़ाकरात जब आपके हुए थे पहला वाला सेशन, उसमें मरियम औरंगज़ेब साहिबा थी और मुतल्लिका इदारों में से कौन कौन था? मुतल्लिका इदारों में से अपना वज़ीर ट्रांसपोर्ट था, अच्छा, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट था, हाँ। 3-4 और मतलब। तो उनकी समझ में नहीं आती आपकी बात, आपके जो मुतालिबात हैं? देखिए जी, वक्ती तौर पे ये मुतालबा सारे मान लेते हैं, उसके बाद 2 या 3 बार चलेंगे, उसके बाद कोई बात ही नहीं सुनता हमारी। फिर हम इनके पीछे होते हैं या आगे होते हैं, वो इलेक्शन वाला हिसाब होता है। तो जब ये इलेक्शन में हमारे पास आते हैं, आवाम के पास आते हैं, जब वोट लेके ये मिनिस्टर बन जाते हैं, PMN बन जाते हैं, तो उसके बाद आवाम इनके घरों पे बैठी होती है और वो घर खाली होते हैं। अच्छा, अभी इन हड़तालों की वजह से नबील साहब कितने अफराद हैं जो बेरोज़गार हैं? ज़ाहिर है उनके पूरे घर हैं, पूरा सिस्टम होता है, सेटअप होता है,
कितने लोग हैं? देखिए पूरी एक इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, लाखों लोगों का रोज़गार बसता है। हमारे ड्राइवर, हमारे मैनेजर, हमारे साथ जो मुंसलिक लोग हैं, जो मैकेनिक है, जो टायर वाला है, जो कमानी वाला है, जो जिनके बेशुमार इसमें लोग शामिल हैं, लाखों लोगों को अफराद आते हैं जिनका रोज़गार अल्लाह ने इससे इंडस्ट्री से वाबस्ता रखा हुआ है। लेकिन बदकिस्मती है, गवर्नमेंट को इससे कोई सरोकार नहीं है। अब देखें कि मैं समझता हूँ कि जब हम 8 दिन का टाइम देते हैं तो क्या ये पहले एंगेज नहीं कर सकते, पहले डायलॉग नहीं हो सकते, पहले नहीं बैठा जा सकता? लेकिन जब स्ट्राइक हो जाती है फिर उसको लंबा करना। पिछले 10 दिन की स्ट्राइक में हमने क्या सीखा? 60 अरब रुपए का नुकसान हुआ और हम जो रिलीफ मांग रहे थे 5-6 अरब रुपए का मांग रहे थे। अब अंदाज़ा करें कि 5-6 अरब के रिलीफ के लिए आपने 60 अरब रुपए का मुल्क का नुकसान कर दिया, और फिर जो वायदे किए फिर आपने वो तोड़ दिए, फिर आज दोबारा हम वही 8 दिसंबर वाली पोजीशन पे चले गए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्यों नहीं ये सोच रहे? क्यों? अच्छा, अगर आपके ये मुतालिबात नहीं माने जाते तो फिर अगला आपका हड़ताल का लाहे अमल क्या होगा? क्या स्ट्रेटजी प्लान है? स्ट्रेटजी यही है कि काम बंद करके बैठे हैं जी, बिल्कुल बैठे हैं, चला ही नहीं सकते। हमारा देखिए नुकसान है, कराची आने जाने के बाद अगर मैं 30-40 हज़ार रुपये का नुकसान करूँगा तो मैं तो रोड पर नहीं आऊँगा, मैं तो अपनी गाड़ी नहीं चलाऊँगा। कमाने के लिए हर बंदा करता है, क्या हम इनको टैक्स देते जाएं? ये बैठकर आराम से टैक्स लें हमसे, और हम कहाँ से लेके आए? देखिए, बजाय के टैक्स कम करके आप बिजनेस वॉल्यूम हमें बढ़ाना चाहिए, ना कि हमें टैक्स ज्यादा करके तो अपना बिजनेस वॉल्यूम ही कम कर देना चाहिए। मलिक साहब क्या कहेंगे आप? जी, मैं भी यही कहूँगा कि इनको हमारे जितने भी जायज़ मुतालबात हैं उस पर गौर करना चाहिए, और मुल्क की मईशत को तबाह नहीं करना चाहिए। ये अपने हाथों से तबाह कर रहे हैं इसको। ठीक। हाँ। उमर, क्या इसका हल निकलता हुआ देख रहे हैं आप? क्या मतलब अभी वाइंड अप की तरफ हम जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये इनके जो जायज़ मुतालबात हैं वो इनका राइट है। देखें, ये लोग इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, अरबों रुपए का कारोबार है। लोग जो दिहाड़ीदार लोग, जो इनके जो लोडिंग अनलोडिंग है वो दिहाड़ीदार हैं। अब इनकी अनलोडिंग और लोडिंग ख़त्म हो गई है, यानी बंद हो गई है, तो वो लोग तो बेचारे, उनके तो चूल्हे ठंडे पड़ गए। हुकूमत ने अगर ये दावा तो करती है कि हम आम आदमी के लिए, एक सफ़ेद पोश आदमी के लिए जो है वो कोशिश करते हैं कि उनको जो है वो बेहतर से बेहतर फैसिलिटेट किया जाए। क्या ये फैसिलिटेट किया जा रहा है? तो उन लोगों के रोज़गार जो कमा रहे हैं, जिनकी वजह से उनके चूल्हे जल रहे हैं, वही बंद होगी। बहुत शुक्रिया जी उमर आपके आने के लिए, और मलिक साहब आप आए हैं, मलिक मारूफ थे जी हमारे साथ। नबील महमूद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। हमारा ये प्लेटफॉर्म, हमने कोशिश की है कि आपकी आवाज़ जो है मुतल्लिका इदारों और ये ऐवान तक पहुँचाई जा सके, ताकि इस पर आवाम जो सफ़र कर रहे हैं अल्टीमेटली उनको कुछ रिलीफ मिल सके। हर चीज़ का टेबल टॉक के ज़रिए कोई ना कोई हल निकलना चाहिए, ना कि ये हाथ पे हाथ रख के हड़ताल करके बैठे रहें। उधर लाखों लोग जो हैं बेरोज़गार हो गए, उनके घरों के चूल्हे ठंडे पड़े हुए हैं, और आवाम दूसरी तरफ पिस